नमस्कार दोस्तों, वीकली क्विज में आप सभी का स्वागत है। 29 मार्च से लेके 4 अप्रैल के ये क्वेश्चंस हैं। तीन स्टेटमेंट्स हैं। फरलो इज ग्रांटेड टू द प्रिजनर टू मीट अ स्पेसिफिक एक्सीजेंसी whereas parole may be granted without any reason. Period of furlough granted to a prisoner is treated as remission of his sentence, whereas parole is a system of releasing a prisoner with suspension of the sentence. Prisoner does not have an absolute legal right to claim parole unlike furlough. तो गाइस देखिए, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, उल्टा दिया हुआ है। पैरोल जो दिया जाता है ना, वो एक स्पेसिफिक एक्सीजेंसी, मतलब सामने वाले के घर में अगर कुछ इमरजेंसी आ गई हो। संजय दत्त को आपने देखा होगा, कई बार उन्हें पैरोल में छुट्टी दी जाती थी, ठीक है। जबकि फरलो जो है, इट मे बी ग्रांटेड आफ्टर अ स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ ईयर्स विदाउट एनी रीजन, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट सही है। प्रिजनर डज नॉट हैव एन एब्सोल्यूट लीगल राइट टू क्लेम पैरोल, दैट इज फॉल्स। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि although furlough can be claimed without a reason, prisoner does not have an absolute legal right to claim furlough, ठीक है। सो थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स होगा। करेक्ट आंसर होगा इसका सी। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन रन्स अक्रॉस विच सी। सो ये एक एक्सपोर्ट गैस पाइपलाइन है रनिंग फ्रॉम रशिया टू यूरोप अक्रॉस द बाल्टिक सी। सो करेक्ट आंसर इज सी। विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, आपके सामने तीन स्टेटमेंट्स हैं। A country needs to be a member of Organization for Economic Cooperation and Development in order to become a member. IEA member countries are required to maintain total oil stock levels equivalent to at least 90 days of the previous year's net imports. India is an associate member of IEA. So guys, तीनों statements यहाँ पे correct हैं, ठीक है। In order to become a member of IEA, a country needs to be a member of OECD as well. So correct answer होगा D. Question number 4. NCRB is the nodal agency for the implementation of criminal tracking network system, which is the national database on crimes and criminals. Criminal tracking network systems aims to connect all police stations across the country with all their crime and criminal data into a central database for real-time access. Aadhaar law provides for the use of its data by any of the criminal investigation agency in India. So guys, देखिए थर्ड स्टेटमेंट तो यहाँ पे फॉल्स है। Under the Aadhaar law, its data could not be given to any criminal investigation agency. ठीक है, बाकी दोनों यहाँ पे सही है। तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का B1 and 2. Question number 5. The Constitution of India states that Parliament can bring no law that violates the fundamental rights of citizens. तो ये तो सही है। Article 20 is a fundamental right that guarantees the right against self-incrimination. ये भी सही है। In the Puttaswamy case, the Supreme Court held that the state can collect fingerprints and iris scan for welfare schemes. So तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। करेक्ट आंसर इज डी। टैक्स क्रेडिट, ठीक है। सो टैक्स क्रेडिट क्या होता है? It's a type of credit given by banks such as education loans which do not come under the purview of taxable income. It's the amount of money collected from a taxpayer for a specified purpose as tax on tax. It's a sum that can be subtracted from the total payable tax by an individual. It is reward given by the government for taxpayers who pay the tax in advance. Okay, so tax credit basically is the amount that offsets the overall tax liability of a person. Okay, so it is basically the sum that can be subtracted from the total payable tax by an individual. So correct answer is C. सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? So गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश. Correct answer is B, that is Rajasthan. The financial stability report by RBI looks at which of the following aspects? Are the level of bad loans or NPA within manageable limits? तो ये तो देखता ही है। Are different sectors of the economy able to get credit for economic activity? ये भी सही है। Do Indian banks have enough capital to run their operations? तीनों सही है। Correct answer होगा इसका D. Question number 9. The ocean warming increases the frequency of tropical cyclone winds and rainfall. The productivity of the oceans increases when the carbon emissions from the atmosphere are sunk by it. So guys, पहला statement तो यहाँ पे सही है। देखिए, ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ग्लोबल वार्मिंग इज ऑलरेडी 1 डिग्री सेल्सियस हायर देन द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10. कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग ज़ूनोटिक डिजीजेस. So zoonotic diseases have impacted humankind since the beginning of its association with animals. तो ये तो बिल्कुल सही है।
increased incidences of the diseases in recent times are a direct consequence of large scale deforestation and encroachment of pristine natural ecosystem. बिल्कुल सही है ये भी. Out of all the human disease causing pathogens identified so far, only 10% are of animal origin. So only 10% ये जो बात है that is absolutely false. Okay. साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि 60% होगा ये, 10 नहीं. It includes tuberculosis, brucellosis, anthrax, then उसके बाद leptospirosis, rabies, etc. So correct answer is B. 11 इस्तांबुल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? सो गाइस इस्तांबुल कन्वेंशन जो है इट इज रिलेटेड विद प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. ठीक है. सो काउंसिल ऑफ यूरोप ने एस्टैब्लिश किया था, ये एक ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है विद द एम टू प्रिवेंट एंड प्रोसिक्यूट ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. क्वेश्चन नंबर 12 रिगार्डिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. दो स्टेटमेंट्स हैं. अंडर द यूएपीए एक्ट ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट एंड नॉट ऑर्गेनाइजेशन. ये फॉल्स है गाइस. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है. एक अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद से. अंडर दिस एक्ट बोथ इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स कैन बी चार्ज्ड. एब्सोल्युटली. सो करेक्ट आंसर इज बी. द टर्म लंदन कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? चाइल्ड लेबर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मरीन पॉल्यूशन, साइबर क्राइम. सो करेक्ट आंसर होगा इसका सी, दैट इज मरीन पॉल्यूशन. ठीक है. सो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ मरीन पॉल्यूशन. अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड तीन स्टेटमेंट्स हैं. द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिस इन द कंट्री एंड इज पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव. तो ये बिल्कुल सही है. ही और शी अपीयर्स ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in all cases in the Supreme Court or in any case in High Court in which the government of India is concerned. Okay, तो भारत सरकार या राज्य सरकार का पक्ष अटॉर्नी जनरल रखता है. टर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने 5 साल फिक्स किया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है. नो टर्म इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. सो करेक्ट आंसर इज ए 1 and 2. आखिरी सवाल रिगार्डिंग एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग. इट्स अ नाटो स्टाइल रीजनल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी. ये बिल्कुल सही है गाइस या नहीं? ये बिल्कुल गलत है. ठीक है. सो इट्स नॉट अ नाटो स्टाइल इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी. ये एक FATF स्टाइल इंटरगवर्नमेंटल या इंटरनेशनल बॉडी है. द मेंबर्स आर कमिटेड टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग द प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा. करेक्ट आंसर इसका होगा ए, क्योंकि इनकरेक्ट आपसे पूछा गया. तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होता है. मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में. तब तक के लिए बने रहिए. सब्सक्राइब करना ना भूले इकरा IAS के YouTube चैनल को. धन्यवाद.